दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता है वो शुरू हो चुकी है। अभी दोनों ने 4-5 लाइन का अपना एक इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद अब उनकी जो मीटिंग होगी उसके अंदर कैमरामैन नहीं होंगे और उसकी वीडियोग्राफ नहीं हो। साथ में उधर से चीन का प्रतिनिधिमंडल है वो भी, और ये देखिए चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का अगवानी करते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रूस के कजान शहर में हुई है। दोनों नेताओं के बीच Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the Global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the Global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples
for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理 और मोदी जी ने उनको बोला है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हम दोनों के बीच में जो डायलॉग होगा वो पॉजिटिव होगा, और उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आज हम बात कर रहे हैं और कल आप उस बात से पलट जाओ। सेंसिटिविटी होनी चाहिए बात में। उनका कहने का मतलब यह था कि आप करते कुछ और हो, होता कुछ और है, और आप दिखाते कुछ और हो और कहते कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल वे में एक कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच में कनेक्शंस होने चाहिए, वार्ता होने चाहिए। तो ये एक जिस्ट था जो कि मोदी जी ने बोला। और एक बात जो उन्होंने बोली थी वो बिल्कुल सही है कि ये 5 साल के बाद दोनों मिल रहे हैं, और ये जी जिनपिंग ने भी बोला और ये मोदी जी ने भी बोला। मैं आपको बताता हूं कि दोनों ने क्या बोला। उसके पहले आप देखिए, दोनों ने हैंडशेक किया, और हैंडशेक किया लेकिन गले नहीं लगे। जैसे मोदी जी बाकी नेताओं से गले लगते हैं, वैसे एटलीस्ट इस मीटिंग में गले नहीं लगे। ये एक तरीके का इंडिकेशन है या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी जिनपिंग को कि हम वार्ता पे तो बैठे हैं, लेकिन आप हमारे इतने नजदीक नहीं हैं जितने पुतिन हैं। ये एक तरीके का तो उन्होंने इंडिकेशन दिया। और मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने जो बात की है वो की है सीमा विवाद पे। उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 साल में जो गतिविधियां हैं बॉर्डर पे हो रही थी, और हमको बहुत खुशी है कि आज हम एक सॉल्यूशन पे बैठे हैं और हमने अपने अपने स्थान जो 2020 के पहले थे वो हमने ले लिए। और इसके लिए उन्होंने जिनपिंग का थैंक यू भी बोला। थैंक यू क्यों बोला पता नहीं। चाइना खुद घुस के आया अंदर इंडिया के, और अब खुद निकल के बाहर गया है, शायद पुतिन के कहने पे, चाहे वेस्ट के प्रेशर से, चाहे इंडिया के प्रेशर से। तो इंडिया को उसमें धन्यवाद पे करने की क्या जरूरत थी। एनीवेज, और दूसरा जो पॉइंट मोदी जी ने उठाया वो उठाया दोनों देशों के बीच के सहयोग का। उन्होंने कहा दोनों के बीच में व्यापार बढ़ना चाहिए, और सुरक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने में दोनों के बीचों में बातचीत हुई। और तीसरा जो सबसे बड़ा एक उसके अंदर टॉपिक था मोदी जी का, वो ये था कि ये 5 साल के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है हम और दोनों के बीच में, और आशा करते हैं कि ये आगे भी चलती रहेगी और उसी कंडीशंस में चलती रहेगी जो आज है। और उन्होंने ये जोर दिया कि ब्रिक्स जैसे जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं उनको और मजबूत किया जाए, और उन्होंने जिनपिंग का थैंक यू भी पे किया। अब देखिए, इसके पहले जिनपिंग ने क्या बोला था? जी जिनपिंग ने बोला था कि ये बाइलेटरल जो रिलेशंस हैं उनमें सुधार होना चाहिए। उसके पहले उन्होंने भी यही बोला था कि 5 साल के बाद हम दोनों मिल रहे हैं। मतलब यह है कि दोनों ने इस चीज को एक वेटेज दिया है कि ये मीटिंग 5 साल के बाद हो रही है दोनों के बीच में किसी भी फोरम पे। और अब जी जिनपिंग कहते हैं कि चीन और भारत के संबंधों में मजबूती आना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअस डिस्कशंस।
ये जो आज हम दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है, इसको कंटिन्यू करना है हमको, यहां पे बंद नहीं करना है। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दी है चाइना के प्रेसिडेंट ने। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में एटलीस्ट चाइना का इंडिया में दोबारा घुसने का कोई इरादा नहीं है, और भाई साहब इरादा हो भी नहीं सकता है। अगर आपको ये जानना है कि क्यों इरादा नहीं हो सकता है तो मेरे कल का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स लिखे। 10 पॉइंट्स हैं कि क्यों चाइना को फोर्स होना पड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना इंडिया के साथ। ये चाइना की मजबूरी थी, मन नहीं था। और जब कोई चीज मन से नहीं होती ना, तो कब पलटवार हो जाए, कब वो दोबारा उसी काम में आ जाए, आपको पता नहीं। लेकिन आज की सिचुएशन ठीक है, और यही जिनपिंग ने कहा कि हमको ये जोर देना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में भी बातचीत होती रहे, निरंतर संवाद हो, कंटिन्यूअस एक डिस्कशन है वो चलता रहे। और जो उसका मेन टॉपिक है जिनपिंग का, वो है आर्थिक सहयोग। वो कहता है कि जो भी आपस में हमारे सहयोग है, जो कि इकोनॉमिक्स वाला है, बिजनेस है, वो चलते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जो भी काम करने हैं, जो इंपॉर्टेंट काम करने हैं टू इंप्रूव द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो जरूर हमको करना चाहिए, ये जिनपिंग ने बोला। एंड फर्दर he expressed optimism about strengthening ties and working together on global issues such as development and multilateralism in line with the goals of BRICS। उन्होंने ये बोल दिया कि हम आगे भी जो ब्रिक्स के समिट के मैनिपुलेशंस में आते हैं, मैनिपुलेशन में आते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे और उसके तहत हम आपस में बात करते रहेंगे। एक मल्टी फोरम में तो करेंगे, हम बायलैटरल भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैं ये दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन में दोनों नेताओं ने आपस में क्या बोला, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करूंगा जिसमें कि अगर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती है कि बिहाइंड द कैमरा क्या बातें हुई हैं, क्योंकि उसका कोई व्हाइट पेपर तो आएगा कि डिस्कशंस क्या हुए, तो वो हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे भारत।